خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا cleanliness is a half of the faith، اور طہارت نصف ایمان، پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا whoever maintains silence attains deliverance، من سمتا نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بحث کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بچانے سے کچھ نہیں ہوتا، خاموشی اختیار کریں، نجات اپنے آپ مل جائے گی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، جانتے ہیں؟ مثال دیتے، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی، 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 جن کے جنموں سے شمس و قمر ہے گزر، وہ حسین گزر ہے ہمارا نبی، کا محبوب ہے، آپ کا پیارا نبی سب سے پیارا ہے پیارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا، ہمارا نبی، بھولی پھٹی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا، ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کرما ہے کرنا تمہیں جب کرے گا اشارہ، ہمارا نبی، ہے نبوت کے دائے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے لیاقت کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، اور اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ، ہمارا نبی، حکومت ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا، ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے ہمارا نبی، لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، اے وسائے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ، ہمارا نبی، آیتوں سے سپارہ، ہمارا نبی جس کو یاسین مصبل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا، ہمارا نبی، والضحیٰ بھی پکارا، ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں وہی نبی جس کی شان سب سے اعلیٰ، بے شک، جس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، اللہ اس نبی کے بارے میں کہتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ سبحان اللہ، سوچیں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس مصطفیٰ کے صدقے بے شک، سبحان، ہماری کیا اوقات محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، امر تعطیل کا سب کو مبکر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام کا، بے شک، سبحان اللہ، کیا ہم کو غلام کا، ارے مقدر ہو تو ایسا ہو، بڑی نازک کے حتم امت ہے تو غلام کارم لے کر خوش نصیبم یا رسول اللہ، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ میں آپ کا امتی ہوں، غلام کارم لے کے خوش نصیب ہوں یا رسول اللہ۔ وہ رسول علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضور کی شان میں تو اشعار باندھنا ہمارے بس کی بات کیا ہے، ہم تو تھوڑی بہت گری پڑی تعریف کرنا جانتے ہیں، ہماری کیا اوقات کیا اس نبی کی تعریف کریں جس کی تعریف میں خدا نے پورا قرآن نازل سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں، جس کی تعریف میں پورا قرآن نازل، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت اس نبی کی تعریف کرے۔ بہت بہت مبارکباد ان لوگوں کو جن کو نے جشن غریب نواز کی محفل سجائی ہے، آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور آل نبی کی زبان سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ، میرے بھائی قانون کو نہیں
दिल को झिझोड़ने की कोशिश करना। आज इस महफिल से कुछ लेकर के जाना, खाली हाथ गए तो आपका नुकसान होगा। लेकर के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये गरीब नवाज का फैजान है जो हम और आप यहाँ बैठे थे, ये उनका करम है, उनकी नवाजिशें हैं कि उन्होंने आपको बुलाया, साथ में मुझे भी बुलाया। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज 14 रजब मुरज्जब को 537 हिजरी सज्जद की सरजमीन पर पैदा हुए। आपके वालिद हजरत सैयद गियासुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालिदा बीबी वरा बहुत पाकीज़ा खातून, और आपकी परवरिश जो है ऐसे माहौल में हुई, ऐसे पाकीज़ा माहौल में हुई। आप मादरजात वली थे, सुभान अल्लाह, मादरजात वली थे। और ऐसी करामतें ज़ाहिर होती थी बचपन की से कि जिन्हें देख कर के साख्ता ज़बान से निकलता है कि ई सआदत बज़ोरे बाज़ू नीज़ तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये बात हमारी बाजू में कहाँ है, जब तक बख्शने वाला वो खुदा न बख्शे, है ना? वो तो अता बन के आया, सखा बन के आया, करम बन के आया। हम हिंदुस्तान वालों पर बड़ा करम किया, रहम किया, ऐसी नजर कि 90 लाख को मुसलमानों पर बना। सुभान अल्लाह। वो नजर जो न तलवार लेके आया, न बंदूक लेके आया, ऐसा मजहब। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पत्थरों पे दूध चढ़ाया करते हैं, चढ़ाते हैं। एक गरीब को दूध देना गवारा नहीं, दूध बहाना गवारा। ऐसा मजहब, और हमारा कैसा पाकीज़ा मजहब कि अगर नाश्ते से पत्थर हटाता तो सदके का सवाब है। ये मजहब और उस मजहब में कोई फर्क नहीं। हमारा कितना साफ सुथरा मजहब है। आप देखें तो सही, एक पंडित की लड़की थी, पंडित रोजाना दूध की लुटिया लेकर के दूध चढ़ाने के लिए जाता था मंदिर में, और बेटी से कहता था कि मैं आज दूध चढ़ा करके आ गया, भगवान को दूध पिला करके आ गया। बेटी समझती थी कि ये वाकई दूध पिलाने जाते हैं। एक दिन बेटी का मुंह बना, और बेटी तो वालिद की अब्बा हो, पिताश्री हो, कोई भी हो, कोई भी मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बेटियां बाप की तो प्यारी होती है ना। बेटी ने एक दिन कहा, बाबा जान मैं जाऊंगी आज से दूध पिलाने के लिए। पंडित जी ने मना किया, ना बेटी तू मत जा। तो इसने बहुत इशरार किया। बाप ने कहा ठीक है चली जा। इसने लुटिया लिया और चलती गई, मंदिर की तरफ पहुंची। जब मंदिर में पहुंच गई तो वही पत्थर के बुत के सामने उस लुटिया को रखा और कहा, बाबा दूध पी लीजिए। अब इसको क्या पता पत्थर कहां से दूध पीने लगे, क्या पता कि पत्थर कब से दूध पीने लगे। तो इसने कहा, बाबा दूध पी लीजिए। अभी तो ये शराब से कह रही थी, बाबा दूध पी लीजिए। बाबा ने हाथ न लगाया, बाबा ने मुंह तक न लगाया, बाबा टस से मस्त ले भी नहीं, फिर भी इजहार करती है, बाबा दूध पी लीजिए। इसने सोचा लगता मेरे वालिद तो रोजाना आते हैं और दूध पिला करके जाते हैं, लेकिन आज भगवान लगता मुझसे नाराज हो गए हैं, दूध ही नहीं पी रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं। बस इतना कह करके वो अपना सर जो है जमीन में जोर जोर से मारने लगी। मारते पेशानी से उसके खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर, खून बहने लगा। फिर भी वो सर पटकती रही। इतने में देखती क्या कि उसके सर के नीचे किसी ने अपना हाथ रख दिया। सुभान अल्लाह। उसके सर के नीचे अपना हाथ रख दिया। उसने मुड़ कर देखा तो एक फकीर, सुभान अल्लाह, एक फकीर कहता है, बाबा आपने मुझे क्यों रोका। तो कहा, बेटी ये बताओ तुम इस तरह के अफआल, इस तरह के काम क्यों कर रही हो, अपना सर क्यों पटक रही हो, क्या मामला है, क्या वजह है जो अपना सर पीट रही हो। कहा, आप जाइए, आप मुसलमानों के बाबा हैं, आप अपना काम करिए, मुझे अपना। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने उससे इजहार किया, अरे बेटी बता तो सही क्यों रो रही है। तो उस बेटी ने कहा, बाबा मैं इसको दूध पिला रही हूँ, मैं अपने भगवान को दूध पिला रही हूँ। लगता है मेरा भगवान मुझसे नाराज हो गया है, दूध पीने का नाम नहीं लेता, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। गरीब नवाज ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सी बात है तो लो अभी पिएगा, तो कहा नहीं पी रहा है, तो कहा ए पुत्र दूध पी ले। टस नहीं आपने फिर कहा ए पत्थर दूध पी ले, वो नहीं हिला। आपने कहा जलाल भी आ गए और कहा तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हुजूर का गुलाम कहता है दूध पी ले। इतना कहना था, उसका कान पकड़ा और कहा दूध पी ले। इतना कहना था कि हाथ पांव उसको के हरकत किए, लुटिया उठाया और पूरा का पूरा दूध चढ़ा गया। दूध चढ़ा गया। इतना करने के बाद आप अपने रास्ते चले गए। वो लड़की पेशानी में खून लगा हुआ था, वो खून कपड़ों में लग गया। गांव की तरफ वापस आती है। माहौल पहले का जो है बहुत खराब था। लोगों ने देखा पंडित की लड़की खून में सड़ी हुई, उल्टे सीधे इल्जाम करने लगे। वो दौड़ती हुई गई, घर पर गई। पंडित को लोगों ने बुलाया है, पंडित देखो तेरी लड़की कहां से मुकाला करके आई है, कहां से ये बदनामी लेकर के आई है। पंडित बाहर आता है, जब अपनी बेटी को खून में लटपट देखता है, घबरा जाता है। कहा कहता है बेटी क्या मामला है, क्या वजह है, तुम खून में क्यों नहाई हो? तो बेटी कहती है बाबा ऐसी बात है, मैं दूध पिलाने गई थी, जब वो बाबा ने दूध ना पिया तो मैं सर पटकने लगी। जब मैं बाबा को दूध पिला करके आई हूँ, इतना सुनना था। तो पंडित ने कहा कैसी बात करती हो, मैं इतने सालों से उसकी खिदमत कर रहा हूँ, मैंने दूध नहीं पिला पाया, तूने आज कैसे पिला दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने आज ऐसा क्या किया जिस पत्थर ने दूध पी लिया? तो उसने कहा नहीं बाबा मैं दूध पिला करके आई हूँ। पंडित को यकीन ना हुआ। पंडित ने कहा बेटी देख मेरी बेटी, झूठ मत बोल, सच सच बता दे माजरा क्या है, वरना तेरी बदनामी है। बहुत पूछा, बहुत इसरार किया, लेकिन हजारों बार पूछने के बावजूद भी बेटी यही कहती है कि मैं दूध पिला के आई हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने कहा कि झूठ बोल रही है। अच्छा अगर ऐसा है, आज अगर इसने दूध पिलाया है तो ये कल भी पिला सकती है, बेशक राइट? बेशक। आज अगर इसने पिलाया है तो ये कल भी दूध पिला सकती है। उसने कहा ठीक है, जाहिर सी बात है, देखा था पिलवा दूंगी, कोई वजह नहीं। सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा कि आज तो नया माजरा देखने कि बाबा जो है दूध पिए गया, चल के देखते हैं आज नया माजरा देखते। पूरा गांव इकट्ठा, पंडित जी आगे आगे लुटिया लेके दूध की और बेटी के साथ चल दिए। मंदिर पहुंचे, बाबा उनके उसके सामने पत्थर के सामने लुटिया और कहा, उस लड़की से कहा कहो कि दूध पी ले। उसने कहा बाबा दूध पी लो, कुछ नहीं उसमें हरकत हुई। फिर उस लड़की ने कहा बाबा दूध पी लीजिए। नहीं माना, बुद्ध नहीं माना, नहीं हिला। लोग इल्जाम लगाने लगे कि आखिर ये सही बात है कि ये कहीं से मुंह काला करवा के आई है, अगर ऐसा ना होता तो जो तुमने कहा है वो सही हो जाता। जाहिर सी बात है, अपनी इज्जत आदमी को बड़ी प्यारी होती है। जब इतना सुना तो लड़की ने कहा ए बुद्ध, दूध पीता है ये करने वाले बाबा को बुलाओ। हरकत हुई, लुटिया उठाई, मुंह में लगाया, पूरा का पूरा दूध साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने ये देखा, देख करके हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बुद्ध का कोई करिश्मा नहीं, ये बाबा का करिश्मा है। सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी हरकत सकरात की वजह से नहीं, ये बाबा के इशारे की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे बेटी सब कुछ छोड़, तू ये बता बाबा गया कहाँ? सुभान अल्लाह। क्या वो बाबा कहाँ से आया था, वो कहाँ गया? कहने लगी बाबा पिताश्री, बाबा जो यहाँ से आया था और इस तरफ को गया। सारे लोग वो बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़े। देखते ढूंढते एक दरख्त के नीचे नूरानी बुजुर्ग तशरीफ फरमाते। सुभान अल्लाह। नूरानी महफिल लगी हुई
की नूरानी बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। अल्लाह सारे हजरात उनके पास गए और पंडित जी कदमों में गिर गए और कहने लगे, हजरत आप तो भगवान हैं, बाबा आप तो भगवान हैं। कहा, बेवकूफ, भगवान मैं नहीं बल्कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ असली भगवान वो है, सुभान अल्लाह असली पूजने वो है, असली इबादत वाला वो है, माबूद वो है, उसकी पूजा करो। कहा, बाबा आप किसको मानते हैं? कहा, हम अल्लाह को मानते हैं जो एक है, तन्हा है, पाक है, बेमिसल है, बेऐब है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अपने एक बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुंदर था। कहने लगे हम उसको मानते, इसको नहीं मानते। अल्लाह इकबाल का शेर याद आ गया कि वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें के बाद। जिसकी बुलबुली होगी वही बोलेगा। वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें के बाद। हम उनकी उम्मती है कि जिन्हें देखकर पत्थर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी उम्मती है जिन्हें देखकर पत्थर की कलमा पढ़ जा करते हैं। इतना सुनने के बाद गरीब नवाज ने कहा, मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा भगवान की नहीं, मेरा भगवान तो अलग ही है, मेरा भगवान तो वो है जिसका कोई दूसरा नहीं। इतना कहकर आप उठे और चलने लगे। पूरे गांव वालों ने कदम पकड़ लिए और कहा, हजरत मत जाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत जाइए, पहले कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए, फिर जाइए। सुभान अल्लाह अपनी सोबत में बनाइए, सुभान अल्लाह। बिठाइए, कलम की एक नजर सरकार हो जाए, हमारी जिंदगी की मिराज हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। और किसी की जय विजय क्यों मनाए, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको? हमारे वास्ते काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमारे वास्ते काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और वो दरबार कैसा दरबार है, आप देखिए तो सही, कितनी पाकीज़ा ज़ात और हुजूर की दरबार से भेजे हुए, सुभान अल्लाह भेजी हुई वाला, सुभान अल्लाह, भेजी हुई वाला। और वो फकीर थे। कैसे फकीर थे? ये मांगने गाने वाले फकीर नहीं थे, वो फकीर नवाजने वाले फकीर थे, सुभान अल्लाह, देने वाले फकीर थे। आपकी कुर्बा परवरी के लिए अंदाज ने आपको गरीब नवाज के नाम से मशहूर कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे गरीब नवाजी कि आप एक मर्तबा गरीब की तरफ जा रहे थे, नए कपड़े पहने हुए थे, रास्ते में देखा एक नहीफ लागर बच्चा बैठा हुआ था। आपने उसकी उंगली पकड़ी और उससे कहा, भाई तुम कहाँ से हो, कैसा क्या मामला पूछे, और अपना कुर्ता उतार के उसको पहनाया और ईद की हकीकी मसरत, हकीकी खुशी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा ईद वो दरबार है आला तेरा, कभी महबूब नहीं मांगने वाला तेरा है, तेरी जात अजब पहले हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। उस दरानी शख्स गफलत को जगा देता है, साल रातों का नसूना तेरा। एक मर्तबा आप जा रहे थे कि आपकी पुजारी गरीब नवाज पूछा कि बोले सुभान अल्लाह, आपकी पूजा करने वाले इकट्ठा थे, आपकी पूजा कर रहे थे, मशगूल थे, पूछे जा रहे, पूछे जा रहे, पूछे जा रहे। गरीब नवाज ने कहा, ये क्या कर रहे हो? रौदार आवाज, ये क्या कर रहे हो? हालत खराब। हजरत आपको पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है? कोई ना कोई वजह होगी बात, तभी पूछ रहे हैं। किस वजह से पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हजरत इस वजह से पूछ रहे हैं ताकि ये वहां नरक में हमें जलाए। क्या ना करे? नरक में ना जलाए। आपने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो जरा अपना हाथ डालकर देखो, हाथ डालकर देखो, देखिए तो जरा ये तुम्हें जलाती कि ना जलाती? तुमने हजारों साल इसकी इबादत की, आज इसका एग्जाम्पल सामने कर लो, एग्जाम्पल भी देख लो। हाथ डालो, जल गया तो तुम्हारी इबादत बेकार है, और बच गया तो तुम्हारी इबादत सही है। डाल के देखो। ना ना बाबा, अगर ऐसा करेंगे तो हाथ जल जाएगा।
یہ جلانے کا کام کرتی ہے، ہاں جلا دے گی۔ کہا ایسی بات ہے تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آپ کو بھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمام ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پیدا کیا۔ تو کہا اچھا بابا آپ کیا ثبوت دے دیں، آپ بھی کوئی ایگزامپل پیش کریں۔ تو کہا سنو میاں، یہ ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کرتا یہ پیراہن یہ سارا جسم بڑی دور کی بات ہے، وہ آگ میری جوتی کو نہیں جلا سکتی۔ آپ نے اتنا کہا، جوتی اتاری آگ میں ڈال دی، بہت دیر کے بعد جوتی جب نکالی گئی تو ویسی کی ویسی ہی نکلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویسی کی ویسی ہی نکلی۔ سارے پجاری ایک طرف، غریب نواز ایک طرف، کہنے لگے بابا یہ کیا کیا، آپ کی جوتی کو نہیں جلایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا سنو، یہ اس کی عبادت کی دین ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، ساری کائنات کی تخلیق میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس کی عبادت میں وہ پاور ہے کہ میں تو بات کی دور میری جوتی تک کو نہیں جلایا۔ اتنا دیکھنے کے بعد یہ کرامت جب دیکھی تو سارے پجاری دامن کو تھام لیا، کہنے لگے حضرت کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دامن تھمائیے، قدموں میں ڈالیے۔ سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ نکاح ولی میں بولو نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی عذاب کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ وہ تاثیر دیکھی، بدلتی عذاب کی تقدیر دیکھی۔